Hello and welcome everyone. Let's start our today's new topic that is about natural disasters. What is natural disaster? Okay, so we will discuss this. Basically, nature is not only sustains life, nature does not only sustains life, but it is also a great source of destruction. ओके डिस्ट्रक्शन मीन्स जिससे हमें प्रॉब्लम्स होती है वो सब ठीक है कैसे लाइक द फ्लड earthquake volcanoes cyclones landslides etc okay all the natural disasters yeah all the destructions that were caused by the nature they are called the natural disasters okay so they can produce great damage to human life and property हमारी प्रॉपर्टी पर भी बहुत इफेक्ट करती है ये we can possibly reduce the loss by taking some precautions देखो every problem has its own solution उसका खुद का solution भी होता है ठीक है तो we can also possibly reduce the loss by taking some precautions now we will discuss about them in this chapter so here is the first topic which is flood okay this is flood so what is flood the excess of water where there is excess of water in that area the flood is occurring more frequently है ना like Bihar in our India so due to heavy rainfall a large amount of water gets collected in river ठीक है बहुत ज़्यादा वाटर रिवर्स में आ जाएगा देन दिस विल इंक्रीज द सी लेवल और द रिवर द वाटर लेवल इन द रिवर्स विच कॉज द ओवरफ्लोज ऑफ वाटर इन द नियर बाय एरिया उसके आसपास क्या आ जाएगा फिर पानी आ जाएगा बहुत सारा है ना सपोज दिस इज़ अ रिवर and the water is flowing at its own rate if there is heavy rainfall is there ये बहुत सारी रेन आएगी तो ये क्या होगा सपोज दिस इज़ अ विलेज वन विलेज टू कनेक्टेड एरियाज ऐसे ऐसे दोनों साइड कनेक्टेड है तो द रिवर वाटर विल ओवरफ्लो टू दीज एरियाज है ना फिर यहाँ से पूरे एरियाज में जाने लगेगा ठीक है एंड दिस विल कॉज द ग्रेट लॉस टू ह्यूमन लाइफ एज वेल एज देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो ठीक है और जहाँ पर फ्लड होता है दे हैव द शॉर्टेज ऑफ फूड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है सो द रीजन फॉर फ्लड्स आर yes the reason of floods are cyclones tsunamis quick melting of snow strong tides landslides etc all these parts can occur so the northern part of india experience more frequent flood देखो हमारा इंडिया जो है इन दिस वे वी कैन डिस्क्राइब और फिर यहाँ से ऐसे ये जाएगा ठीक है दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर मैप आई रफली तो दिस पार्ट द हिमालयन पार्ट दिल्ली उत्तराखंड एंड दिस हिमाचल ठीक है दिस पार्ट कम्स अंडर द नॉर्थर्न इंडिया तो ये पार्ट जो है दिस इज मोस्ट प्रोन एरिया टू द फ्लड एंड फ्लड कैन कॉज सीवियर डैमेज टू लाइफ ऑफ कैटल लाइफ ऑफ ह्यूमंस एंड पोवर्टी एंड क्रॉप्स प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स ठीक है सब पर नुकसान करेगा नाउ वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग फ्लड कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं नाउ लिसन टू फ्लड वार्निंग्स ऑन रेडियो और टेलीविजन yes obviously when there is a flood we know that the weather department of our india the weather department है ना weather department it alerts before the flood could come है ना आने से पहले ये बता देते हैं कि these areas are prone to flood है ना तो you can leave that area or you can just take the precautions ठीक है इट्स बेटर टू लीव दैट एरिया फॉर द सेवरल डेज और सेवरल मंथ्स आई नो देयर विल बी अ प्रॉब्लम बट एटलीस्ट इफ वी हैव अ लाइफ वी कैन रीगेन एवरीथिंग so what are the precautions that we can take so first is listen to flood warnings on radio and television keep fresh water food articles kerosene candles match boxes etc ये हम रख सकते हैं अपने साथ now keep some plastic bags for packing food articles and clothes ये क्यों है we have to reduce the use of plastic but here we have to use why so basically the plastic does not get wet means if we put anything in a plastic bag अगर हमने देखो ये कोई plastic bag है इसमें हमने अपना कुछ भी सामान यहाँ रख दिया and if we tied them अगर हमने उसको बांध दिया तो इस ये पार्ट सेव हो जाएगा है ना द वाटर विल नॉट गो इनसाइड दिस प्लास्टिक बैग दैट इज वाई वी कैन कीप द प्लास्टिक बैग्स वेन एवर द वार्निंग हैज़ बीन अनाउंस्ड ठीक है ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर एंड ईट ओनली फ्रेश फ्रूट
तो जब भी ऐसी कंडीशन आए वी जस्ट हैव टू टेक we just have to drink the boiled water as well as we can eat only the fresh foods. ठीक है, डू नॉट एंटर द फ्लडेड एरिया अलोन, अकेले कभी नहीं जाना वहाँ पे. हो सकता है द सडन इंक्रीज या रैपिड्स विल ऑकर देयर, है ना, रैपिड्स द सडन द रिवर द फ्लो ऑफ रिवर विल इंक्रीज एट अ सर्टेन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द रैपिड. ठीक है, अब रिवर एक सडन आ जाएगी तो वी कैन नॉट स्विम एंड वी कैन नॉट गो अपार्ट फ्रॉम दैट रिवर और apart from that flow of water. So now we can also take help from government agencies. Many governments are working on this, है ना. You can see a image here. In this, these are the government, these are the our soldiers which were preventing the people which were affected by the river, है ना, which were affected by the flood. So this is a scene of a flood, है ना. देखो यहाँ तक, इसके पैरों तक यहाँ तक पानी भरा हुआ है ना, and they have been trapped at a place. So these are the soldiers which were sent by the government to help these peoples. Okay, now if we talk about the drought, what is drought? तो just opposite to flood, देखो flood का मतलब क्या था, where there is excess of water, and when या फिर हम ये बोल सकते हैं कि where there is no water or the scarcity of water, then that area is suffering the drought. मेनली दिस हैपन्स इन डेजर्ट पार्ट. ये कहाँ पर होता है, डेजर्ट्स में, जहाँ बहुत ही कम एवरेज रेनफॉल होता है ना. तो अ ड्रॉट इज कॉज्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, मेनली ड्यू टू लेस और नो रेनफॉल. जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता वहाँ पर भी हो सकता है, वहाँ पर ही होता है एक्चुअली. इन सम एरियाज देर इज एन एब्सेंस ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. देर आर मैनी एरियाज such that there is no natural sources of water. Natural sources means the river, pond, canals, all these things. ठीक है, a large part of our country can be affected by the droughts. और हमारी कंट्री में large part of area is there which is affected by the droughts, especially the Rajasthan part. राजस्थान, है ना, it received about 0 to 25 annual rainfall centimeter. ठीक है, तो इट हैज़ बैड इफेक्ट्स ऑन फार्मर्स. अब देखो, व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर वी कैन नॉट ग्रो द क्रॉप्स, एंड इफ वी डोंट ग्रो द क्रॉप व्हाट विल बी ईट, है ना. तो देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड एज वेल, एंड वी डोंट हैव द प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर और द फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, एंड पीपल ऑल्सो हैव टू ट्रेवल अ माइल टू गेट द वाटर, टू गेट द फ्रेश वाटर, है ना. उनको एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना हो सकता है. नाउ वी कैन रिड्यूस दिस इम्पैक्ट बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर बेटा, तो वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना. वी कैन सेव द रेन वाटर. अब इफ वी सेव द रेन वाटर, दिस विल इंक्रीज द वाटर लेवल ऑफ द अर्थ, है ना. देन वी कैन डिग द अर्थ into a well or a hand pump and we can get the fresh water. So basically you have to follow, means these people have to follow following steps. जैसे learns to save and conserve water. How can we save, how can we conserve the water, कैसे बचा सकते हैं. इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखो बेटा कैसे होता है. सपोज दिस इज अवर होम, ठीक है, और यहाँ पर हमारी क्या है, एक फ्लैट रूफ है. तो विद दिस रूफ द रेन इज कमिंग एवरीवेयर, ठीक है. तो द वाटर गेट कलेक्टेड ऑन दिस रूफ. वी कैन मेक और वी कैन गेट आउट दिस वाटर विद द हेल्प ऑफ अ पाइप एंड पुट दिस पाइप ऑन अ वेल और अ डिग्ड अर्थ. एक कोई गड्ढा खोद के वहाँ पर भी हम उस पाइप को फिट कर सकते हैं. देन द रेन वाटर विल गेट कलेक्टेड इन दिस वेल और द डिग्ड अर्थ, है ना. तो by this we can save the water. So this is the flood. Yes, this is the area where the drought have been occurred. देखो यहाँ की soil कैसी है, देखो बिल्कुल पानी ना होने की वजह से the cracks have been made in the soil. देखो ये कितने सारे cracks हो गए हैं. And this type of soil is not good for the production or the production of the crops. Okay, so और कौन से हम तरीके अपना सकते हैं, तो इनकरेज द सिस्टम ऑफ ड्राई फार्मिंग. ड्राई फार्मिंग भी हम अपना सकते हैं, ये एक तरीका होता है फार्मिंग करने का. ऑल्सो वी कैन प्लांट मोर ट्रीज टू कंजर्व वाटर, ठीक है. वी कैन प्लांट मोर ट्रीज टू कंजर्व वाटर बिकॉज प्लांट्स आर द गुड सोर्स ऑफ
making our atmosphere clean, and if our atmosphere is clean everything will be going right way, so there will be a proper rainfall also. ठीक है. The drought occur frequent intervals in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा. मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Means in this 12 states, not the district, these are the states. तो in these 12 states the droughts can be occur. ठीक है. तो हमारा इंडिया बहुत सफ़र करता है ड्रॉट से. एंड समवेयर लाइक इन मुंबई एंड बिहार, every year they suffered from flood. ठीक है. every year they suffer from flood. So it has been successful in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. They have meet the shortage of water also. ठीक है. तो yes, it has been successful in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Okay, so this is drought. We have discussed about what is flood, what is drought, just opposite to each other. Flood is what? The excess of water, and drought is what? The shortage of water. Okay, now here is the third topic, which is what? The earthquakes. So the sudden movement under the earth's surface can cause vibrations, strong vibrations. कैसे होते हैं देखो बच्चों, this is the wait a minute, yes, this is the surface of the earth. ठीक है. तो इसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. ये है, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे भी हो सकती है, एक साथ भी हो सकती हैं. ओके, सो देर इज ड्यू टू द एक्सेस या ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ क्या हो रहा है बेटा कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दे गेट कोलाइड विथ ईच अदर. और जब वो कोलाइड होंगे तो यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा, है ना, और यहाँ से छोटी छोटी रेज निकलेंगी. रेज, साउंड वेव्स जैसे हम बोलते हैं. जैसे हम क्या करें, एक बड़ा स्केल ले सकते हैं अपने पास, द स्टील स्केल, और उस पर क्या करना, कुछ छोटे छोटे से रबर के टुकड़े डाल देना, है ना. फिर जैसे ही उस पर आप थोड़ा सा नॉक करोगे, दैट रबर बॉल्स विल स्टार्ट फ्लोटिंग, या वो उछलने लगेंगे, है ना. दिस इज द सेम कि उसमें वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन कहलाता है, विच यू विल लर्न इन योर हायर क्लासेस. तो ये जो पॉइंट कहलाता है सेंटर, दिस इज कॉल्ड द फोकस. रिमेंबर दिस बच्चों, यू कैन नोट इट एनीवेयर. द पॉइंट एट विच द अर्थक्वेक ऑकर्स इज कॉल्ड द फोकस पॉइंट. और जब ये अर्थ के सरफेस को टकराता है ना, सपोज इन दिस, बिटवीन दिस सरफेस द अर्थक्वेक इज मीटिंग अप विद द क्रस्ट, ये क्रस्ट है हमारी, तो ये कौन सा पॉइंट कहलाता है? एपी सेंटर. एपी सेंटर, एपी सेंटर. ओके, नाउ yes, this can cause serious damage to life and property. Obviously all the natural disasters cause these damages. Now the study of earthquake is called seismology, so underline this part, very important. The instrument by which we can intensity of earthquake can be measured is called seismograph. ठीक है, जिससे हम इंटेंसिटी नाप सकते हैं, कितना बड़ा भूकंप आ रहा है, कितना बड़ा अर्थक्वेक है ना. तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सीस्मोग्राफ. Now the intensity and strength of earthquake is measured on Richter scale. और इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं हम अर्थक्वेक की, तो वो है ऑन रिचर स्केल. ठीक है, विच इज़ फ्रॉम 0 to 14. इतना है ये, फ्रॉम 0 to 14. नाउ वेयर इज ऑरिजिनेट, दैट इज कॉल्ड फोकस. ये मैंने बताया कि सपोज दीज आर द टू टेक्टोनिक प्लेट्स, ये जब टकराती हैं तो ये जो पॉइंट बनता है सेंटर पर, ये होता है फोकस. और जब ये रेस क्रस्ट पर आकर हमें फील होने लगती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एपी सेंटर. ठीक है, सो द इंटेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक इज मैक्सिमम एट इट्स और नियर एपी सेंटर. तो बेटा यहाँ पर सबसे देखो, यहाँ तो क्या है, बहुत कम है ना. हमने स्केल का भी एग्जाम्पल लिया, वहाँ हम कर सकते हैं, जहाँ हम उसको नॉक करते हैं.
ओके, सो सम डिस्टर्बेंस वाज देयर। देखो जहाँ हम इसे नॉक करते हैं, व्हेन इट स्ट्रक्ट विद द क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और यहीं पर सबसे मैक्सिमम होता है अर्थक्वेक, है ना, फील हमें। नाउ example is there कि on 26 Jan 2001 a massive earthquake occurred in Bhuj in Gujarat. Bhuj is a place which is in Gujarat. तो major earthquake was there, है ना, about 20,000 people died and lakh were injured, क्योंकि जितने मरते उससे ज़्यादा तो इंजर्ड हो जाते हैं ना, तो बहुत सीवियर डैमेज हुआ था ह्यूमन लाइफ्स को, ठीक है। सो अपर अर्थ एक्सपीरियंस दिस एवरी ईयर, मिलियंस ऑफ माइनर एंड मेजर अर्थक्वेक आते रहते हैं हमारे अर्थ पर ड्यू टू द सडन मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स। नाम याद रखना, टेक्टोनिक प्लेट्स, ओके। नाउ वी कैन टेक दीज प्रिकॉशंस, है ना, ये सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम, ऑल दीज। सो कम आउट ऑफ योर हाउस और स्कूल बिल्डिंग एंड मूव टू एन ओपन एरिया इमीडिएटली। जब आपको शेकिंग ऑफ अर्थ फील हो तो आप सडन अपने घर से भाग करके कहीं ओपन एरियाज़ में चले जाएं, है ना, क्योंकि द बिल्डिंग्स कैन कभी भी ढह सकती है वो। तो डू नॉट रन थ्रू बिल्डिंग्स ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बाद भी हमें बिल्डिंग्स के पास दौड़ना वौड़ना नहीं है, ठीक है। रिमेन क्लोज टू द वॉल्स टू प्रोटेक्ट योर हेड। सिट अंडर अ हैवी टेबल, कोई बहुत बड़ी टेबल हो तो उसके नीचे या अपने बेड के नीचे जा सकते हैं कि अगर बिल्डिंग या रूफ गिरती है तो हमें ज़्यादा डैमेज ना हो। कीप अवे फ्रॉम विंडोज़, मिरर्स एंड सीलिंग फैंस, क्योंकि सीलिंग फैन भी तो गिर सकता है ना बेटा। तो डू नॉट यूज़ लिफ्ट एंड एन अर्थक्वेक गो बाय स्टेयर्स। जब भी अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी हो तो आप लिफ्ट नहीं लें, क्योंकि लिफ्ट विल फॉल सडन, ठीक है, वो अगर गिरेगी भी तो सडन गिरेगी, विच कैन कॉज अ सीवियर हार्म टू अस, ठीक है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक। नाउ डिड यू नो सम ऑफ प्रिकॉशंस आर ऑल्सो देयर कि कीप अवे फ्रॉम द ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स और वायर्स, डू नॉट सिट इनसाइड अ कार और अ बस, ठीक है। नाउ डू यू नो द हाइएस्ट रिकॉर्डेड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, सबसे बड़ा अभी तक जो रिकॉर्ड हुआ था अर्थक्वेक, दैट इज ऑफ 9.5। तो ये याद रखना बच्चों, ये दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है। द कंट्रीज लाइक जापान विच आर हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक, सो विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक? बेटा तो ये क्या है, जापान है ना। नाउ कीप देयर कम्युनिकेशन सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग, एनी प्रिडिक्शन इज इमीडिएटली अनाउंस्ड, कोई भी प्रिडिक्शन होता है तो बहुत जल्दी अनाउंस करते हैं वो लोग, सो दैट पीपल इन द कंसर्न एरिया में बी एबल टू मूव टू सम सेफर प्लेस, ठीक है। और वहाँ कितना भी बड़ा डिस्ट्रक्शन हो, दे टेक जस्ट 20 to 25 days टू रीसेटल दैट। हमारे इंडिया में ये नहीं होता, ये तो सालों तक चलता रहता है, वो सिर्फ 20 से 25 डेज़ में ख़त्म कर देते हैं अपना वापस, है ना। बिल्कुल लगता ही नहीं कि दिस एरियाज आर अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक, ओके। सो दे हैव मैनी मच टेक्नोलॉजीज। नाउ सुनामी, सिमिलर टू फ्लड। फ्लड कहाँ होता है, मे बी रिवर्स कैन कॉज द फ्लड, बट सुनामी ऑकर्स मेनली इन द सी, ठीक है। दिस इज वॉट, दिस इज ड्यू टू द अर्थक्वेक। सुनामी क्यों आती है, अर्थक्वेक की वजह से, विच ऑकर्स इनसाइड द सी, सी के अंदर उसके सरफेस पर, या तो वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होगा। देखो वॉल्केनिक इरप्शन कंटिन्यू होता रहता है, वी नो दैट कि हमारी अर्थ है और जो सेंटर ऑफ अर्थ है यहाँ पर मॉल्टेन रॉक्स हैं, मॉल्टेन का मतलब गले हुए, मॉल्टेन रॉक्स एंड मिनरल्स। तो जब टेक्टोनिक प्लेट सपोज ये है और टेक्टोनिक प्लेट्स एक यहाँ थी, ये आपस में जब कोलाइड होगी तो ये लावा बहुत ऊपर तक जाएगा, मैग्मा बोलते हैं इसको, है ना। और जब ये मैग्मा सरफेस पे आएगा तब हम लावा बोलेंगे, बहुत गर्म होता। तो यहाँ का जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे फैलने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ हाई वेव्स, ठीक है। और दिस इज़ नथिंग बट द सुनामी ओनली, so this is known as tsunami. The tsunami sea waves can travel a speed of 750 किलोमीटर पर आवर। हम जिस कार में भी बैठते हैं ना बेटा, तो उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब जब फुल स्पीड पे चलाओ तब। और ये 750, तो सोचो कितना सीवियर डैमेज करता होगा ये, है ना। तो अ सुनामी कैन इवन लिफ्ट द बोट्स, a tsunami can lift boats and throw them on land near the coast, ठीक है। it can also crush the coastal areas. Some of the human lives is due to drowning by tsunami,
इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है ये। वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि मूव टूवर्ड्स द हायर ग्राउंड, बहुत बड़े ग्राउंड के पास हम भाग सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा, ये जो वेव्स है ये ज़्यादा तेज हमें फील नहीं होंगी। ठीक है, डू नॉट एंटर द सी इफ़ द वाटर इज़ फास्ट रिसीडिंग, अगर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, वी डू नॉट हैव टू एंटर इन द सी। द सुनामी वार्निंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड। डू नॉट फियर सुनामी एंड टेक द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। आपको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यू विल बी सेफ इफ़ यू obey the following precautions, है ना। now next is what, yes this is the tsunami। तो अगर यहाँ पर कोई बोट होगी ना तो ये पानी इसको यहाँ तक उठा के फेंक देगी। दिस कैन कॉज इवन द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग ऑल्सो। ठीक है, हमारे इंडिया में भी आई थी, तो यू हैव टू फाइंड दैट व्हेन द सुनामी केम इन इंडिया। नाउ हियर इज़ अ चेक पॉइंट अप टू व्हाट वी हैव लर्नड ऑलरेडी। तो द स्टडी ऑफ अर्थ को एक is called seismology, not cosmology, it is seismology। the drought is caused due to the shortage of water। मिल्क के शॉर्टेज से तो कुछ नहीं होता है, मिल्क नहीं होगा हम काली चाय पी लेंगे, है ना। तो सुनामी वेव्स ट्रेवल वेरी फास्ट। what is the speed? it is 750 किलोमीटर in 1 hour per hour। ठीक है, now cyclones। so winds in a cyclone blow एट वेरी हाई स्पीड। जो हवाएं चलती है ना साइक्लोन्स के फॉर्म होने से, देखो साइक्लोन्स क्या है, देखो यहाँ एक इमेज दी गई होगी, हाँ ये दिस इज अ साइक्लोन, है ना, इट इज़ डेवलपिंग। तो वाटर इज मेकिंग अ राउंड एट अ फास्टर रेट। अब ये बहुत सारा ऐसा राउंड बना रहा है, तो द एयर विल ऑल्सो फॉर्म इन अ सर्कुलर शेप। ठीक है, एंड दिस कैन कॉज द सीवियर डिस्ट्रक्शन दैट इज गिवन हेयर। देखो ये डिस्ट्रिक्शन, पूरे घर उड़ा दिए, सब कुछ कर दिया इसने, है ना। तो वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस। कौन कौन से प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं इन द साइक्लोन अफेक्टेड एरिया। तो देखो, वी कैन लिसन टू द वेदर रिपोर्ट्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। मूव टू अ सेफर प्लेस बिफोर साइक्लोन रीचेस टू योर एरिया। कहीं भी जा सकते हैं। और वन मोर थिंग कि वी हैव टू स्टे इन अवर होम। ठीक है, हमें अपने घर पे ही रहना है ड्यूरिंग द साइक्लोन। नाउ अवॉइड फ्लड वाटर एंड बी केयरफुल अबाउट स्नेक्स। हमें फ्लड, क्योंकि इसके साइक्लोन से क्या है, पानी भी आ जाता है, तो विद दैट साइक्लोन द सी एनिमल्स कैन ऑल्सो कम आउट। ठीक है, नाउ अवॉइड फ्लड वाटर एंड बी केयरफुल अबाउट स्नेक्स। आफ्टर साइक्लोन ड्राई द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। ये बेटा फ्लड के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमें सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को साफ करना चाहिए बिफोर यूज। नाउ डू नॉट गो, yes so this is what, now do not go near to sea coast। ठीक है, तो न्यू टर्म्स टू नो, our chapter was finished। तो न्यू टर्म्स that we have discussed was what, disasters and event that can cause damage to human life and property। ठीक है, ड्रॉट क्या होता है बेटा, शॉर्टेज ऑफ वाटर मेनली ड्यू टू लेस रेनफॉल। और फ्लड क्या होगा, एक्सेस ऑफ वाटर मेनली ड्यू टू मोर रेनफॉल। ठीक है, साइक्लोन अ वेरी फास्ट ब्लोइंग सर्कुलेटरी विंड, ऐसे गोल गोल तरीके से आती है। ठीक है, टाइफून एक टाइप का वही है, साइक्लोन ही है, बहुत ज़्यादा विंड आती है वहाँ पे। सीस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। लूज रॉक्स विथ मड विल फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ अ माउंटेन। माउंटेन से क्या है, नीचे आने लगते हो, है ना। और दीज आर द थिंग्स टू रिमेंबर दैट यू कैन लर्न बाय योर सेल्फ, या यू जस्ट हैव टू रीड, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज पार्ट। ओके, सो थैंक यू।